Hello everyone. Today we'll solve question number 36 from CBSE exam paper 2026 Maths Standard Set 3 QP code 30/4/3 class 10. So this question is from section E. Section E consists of 3 case study based questions of 4 marks each. So let us begin question number 36. Governing Council of a local public development authority of Dehradun decided to build an adventurous playground on the top of a hill, which will have adequate space for parking. After survey, it was decided to build rectangular playground with a semi-circular area allotted for parking at one end of the playground. The length and width of the rectangular playground are 14 units and 7 units, respectively. There are 2 quadrants of radius 2 units on one side of special seats. Based on the above information, answer the following questions. This is the playground, rectangular playground with length 14 units and width 7 units. And this is the semicircular parking area. So we see from here its diameter is 7 units. And this is the spacious sitting arrangement in the form of quadrant, first and second. So now first question, first part. What is the total perimeter of the parking area? So what is the total perimeter of the parking area? So parking area is this. So this is its total perimeter. So solution. The parking area is a semicircle with diameter is equal to 7 units, radius is equal to 7/2 is equal to 3.5 units. Perimeter of parking area is equal to circumference of semicircle प्लस डायमीटर ऑफ सेमीसर्किल. ये है सर्कमफ्रेंस हाफ और ये डायमीटर है, ये इसकी पेरीमीटर है. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू पूरे सर्किल की पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, हाफ सर्किल की πr प्लस ये डायमीटर 2r यानी रेडियस से 2 टाइम्स is equal to, I'll put the value, so 22/7 pi into 3.5 radius plus 2 into 3.5. So perimeter of parking area is equal to circumference of semicircle plus diameter of semicircle. So perimeter is equal to pi r plus 2r is equal to 22/7 into 3.5 plus 2 into 3.5. So is equal to 22 into 7 से इसको डिवाइड किया तो 0.5 टाइम्स कट हुआ, तो 22 into 0.5 plus 7 इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया इज इक्वल टू 11 plus 7 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड ए. What is the total area of parking at the 2 quadrants? तो हमको टोटल एरिया निकालना है पार्किंग और 2 क्वाड्रेंट्स का. तो ये तो पार्किंग एरिया पूरा ये निकालना है और 2 क्वाड्रेंट्स ये हैं, सो इनका हमको एरिया निकालना है. सो इसका तो डायमीटर 7 है, रेडियस 3.5 है और इसकी रेडियस 2 यूनिट्स, इसकी रेडियस 2 यूनिट्स गिवन है. So now solution. So what is the total area of parking and 2 quadrants? Step 1. Area of parking area semicircle.
तो फुल सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल का या हाफ सर्किल का कितना हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज, 1/2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू ये रेडियस 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सो इज इक्वल टू 11, 2 से इसको डिवाइड किया 11 इंटू 7 से इसको डिवाइड किया तो 0.5 टाइम्स, सो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 3.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 19.25 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ स्टेप 2, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स R1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस क्वाड्रेंट्स की रेडियस 2 यूनिट्स है जिसको हमने R1 मान लिया है, इज इक्वल टू, सो पूरे सर्किल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, क्वाड्रेंट्स का या चौथाई सर्किल का 1/4, और इस तरह के दो हैं इसलिए 2 इंटू 1/4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये पाई की वैल्यू और ये उसकी रेडियस है 2 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू ये 4 हो गया और ये 4 है तो कट गई एक दूसरे से, तो 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू, अब इसमें 22 का इसमें मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 6.28 स्क्वायर यूनिट्स। तो स्टेप 3, टोटल एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, सो 19.25 प्लस 6.28 इज इक्वल टू 25.53 स्क्वायर यूनिट्स। और में क्या है, और में है सेकंड बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। प्ले ग्राउंड के एरिया में और पार्किंग एरिया के एरिया में क्या रेशियो है। सो स्टेप 4, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया ऑफ पार्किंग एरिया इज इक्वल टू 19.25 स्क्वायर यूनिट्स, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर के पार्ट में। सो रेशियो इज इक्वल टू 98/19.25 इज इक्वल टू 98 इंटू 4/77, हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 98 इंटू 4 हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आया, सो इज इक्वल टू, अब इसको 7 से डिवाइड कर दिया इसको और इसको, तो आया 56/11, सो इज इक्वल टू 56:11 रेशो हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। अब इसमें हमें पार्किंग एरिया और प्ले ग्राउंड की फेंसिंग करानी है ₹2 पर यूनिट में। तो फेंसिंग हम कहाँ कराते हैं, पेरीमीटर पर। तो आप देखिए ये है हमारा प्ले ग्राउंड, तो फेंसिंग कहाँ कहाँ होगी, एक तो फेंसिंग ये होगी ये, और यहाँ भी फेंसिंग होगी अगर ये पार्किंग एरिया बाहर है तो, और यहाँ फेंसिंग होगी। तो हमको क्या करना है, इसकी ये और ये पेरीमीटर निकालनी है और ये पेरीमीटर निकालनी है, इसको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगी टोटल फेंसिंग ऑफ द प्ले ग्राउंड एंड पार्किंग एरिया। फिर उसका हम कॉस्ट निकालेंगे। तो स्टेप 5, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया कर्व्ड एज इज इक्वल टू πr। पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। ये सेमी सर्किल है इसलिए उसकी हाफ हो गई πr, सो इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखी 3.5 इज इक्वल टू, इसको कट किया तो 0.5, सो 22 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 11 यूनिट्स। नाउ स्टेप 6, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड 4 साइड्स इज इक्वल टू 7 + 14 + 14 + 7 इज इक्वल टू 42 यूनिट्स। नाउ टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू
42 प्लस 11, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया, इक्वल टू 53 यूनिट्स। सो टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट उसका कॉस्ट है। सो इज इक्वल टू 53 इंटू 2, सो इज इक्वल टू ₹106। सो आंसर, फर्स्ट पार्ट 18 यूनिट्स, सेकंड ए 25.53 स्क्वायर यूनिट्स, सेकंड बी 56:11 एंड थर्ड पार्ट ₹106। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, और इसके अतिरिक्त आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे किस टॉपिक या चैप्टर पर वीडियो बनाई जाए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।